Good morning, everybody. Hey, boss. What's your well being? How are you doing? So, I hope you are doing fantastic and welcome again to Boss Fluency. Fluency. You know, what is fluency? If you are thinking if you are speaking continuously without taking any single pause for a while, you have fluency. If you are thinking like that, na, so it is your illusion. I tell you what is fluency means. Basically, na, fluency is about to convey your message smoothly. If you are able to deliver your message smoothly without facing any problem, and people are able to understand, they can understand your point easily. So, if you are able to deliver your message properly, na, it means you have fluency. Don't think I am not speaking fastly, rapidly. It doesn't mean fluency, okay? If you are able to deliver your message properly without facing any difficulty, it means you have fluency. Okay. Yeah, one thing I have observed that when we speak inside the room, yeah, alonely, we can speak easily and we think we are the best speaker of the world. But when it comes to speak in front of public on stage, that time we get to know ourselves that where are you existing really, what is your level, how many mistakes you are making. So okay, but now I think we don't care about mistakes. Mistakes refine you, but if you take your mistakes as a problem, na, it will destroy you completely. वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं. Okay, so we don't need to take our problems, our mistakes as a problem. Okay, mistakes gives you a golden chance. You can fix these easily and you can learn a lot. But if you are afraid of making mistakes, so how can you learn? Yeah, how can you improve? Mistakes teach us a lot. I also make mistake and everyone make mistakes. अरे, Elon Musk makes mistakes. Narendra Modi makes mistakes. Everyone makes mistakes. So why are you worried about making mistakes? Okay, we don't need to care about people. What will they say? Arey, leave yaar. Just speak. Okay, if you are making mistakes, so you are getting chance to learn so many things. But if you don't make mistakes, you learn only one thing, one way. Okay, so let's back bounce to the topic. Yesterday we have studied our AFAS 2, but na yaar, I am not satisfied. Really, I wanna explain it in detail. That's why today we are also going to discuss about AFAS 2, okay, and in detail. So first, let's make me AFAS 2 table, and after that we will discuss. Okay, so please support me. How can we make table? Because I have taught you a lot. How can we make? So okay, AFAS 2. सबसे पहले हम लेते हैं अपना पास्ट. पास्ट का सिंपल, कंप्लीटेड, और ये क्या हो गया आपका कॉन्टिन्यूटी. सिंपल में क्या आएगा? वाज वर. कंप्लीटेड में क्या आएगा आपका? यस या हैड बीन. हैड बीन. कॉन्टिन्यूटी में क्या आएगा आपका? यस, यू आर डेफिनेटली राइट. देखो कॉन्टिन्यूटी का क्या सिस्टम होता है आपको पता ही है कि आईएनजी आता ही है, ठीक है, और बस इसमें हमने किया क्या, बस बीइंग ऐड किया है. बाकी तो पास्ट की कॉन्टिन्यूटी में वाज वर तो होते ही आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है. अब चलिएगा आपका प्रेजेंट. प्रेजेंट में वही आपका सिंपल, सिंपल, कंप्लीटेड, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है. सिंपल में क्या था आपका? इज, एम, आर, ठीक है. और कंप्लीटेड में क्या था? प्रेजेंट में आपका क्या था? यस, हैज, हैव आता था ना. अब यहाँ क्या हो जाएगा? बस हैज बीन, हैव बीन.
ठीक है, हैव बीन। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या आता था आपका, हाँ इसका थोड़ा सा अलग है, इज एम आर, यस हाँ बीइंग आएगा ही, आपको बताइए कि ठीक है बीइंग। और अब ये रहा आपका फ्यूचर, फ्यूचर में वही आपका सिंपल, कंप्लीटेड एंड कॉन्टिन्यूटी है आपकी। और मैंने बताया था ये दो तो आपको पढ़ने ही नहीं है, ठीक है ना। तो फ्यूचर में एक ही था, कुछ भी आपका स्टेटस आए तो सीधा आपको क्या लगा देना, आपका विल भी लगा देना, ठीक है ना। ओके, और मैंने आपको एक चीज बताया था इसके अंदर कि अगर एक्शन हो रहा हो, मान लो कि कोई एक्शन हो रहा हो तो हम क्या लेते हैं, V3 लेते हैं। एक्शन जाहिर सी बात है इसी में होगा, ठीक है। सब में देखिएगा जहां भी आपका कोई एक्शन आ रहा हो ना, क्या लेंगे हम, सीधा लेंगे V3। ओके ठीक है, यही रखिएगा, V3 लेते हैं। और हमारी जो पहचान क्या थी कि कब हम इस्तेमाल करेंगे अपना FS2, तो हमारे पास क्या था, मैंने आपको कल बताया था ना, सबसे मेन चीज दोस्त क्या है, ये है आपका कि कब इस्तेमाल करेंगे। देखो हमारे पास एक FS1 था, ठीक है, अपना जो एक था अपने पास FS1, ठीक है, और ये क्या है अपना FS2। ऐसा कीजिएगा, हाँ देखिए FS1 में क्या था, हमारा एक्शन की कोई काम हो रहा था, ठीक है ना, कोई काम हो रहा था एक्शन, और काम किसके द्वारा हो रहा था, यानी डूअर के द्वारा हो रहा था। काम किसके द्वारा हो रहा था, जो मतलब खुद किंग के द्वारा हो रहा था। आपका किंग इसके अंदर क्या था, वो आपका डूअर था, कि जो किंग था वो खुद काम कर रहा था, लाइक मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, वो जा रहे हैं, मतलब हमारे द्वारा डायरेक्टली काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो हम इस्तेमाल करते हैं अपना FS1। अब देखिएगा दूसरा है आपका स्टेटस, स्टेटस लाइक वह गाय है, अच्छा वह अच्छा आदमी है, वह डॉक्टर है, वो बहुत खराब आदमी है, ठीक है। ये सारे क्या है, खराब आदमी है, अच्छा आदमी है, हाँ ये वो एक एथलीट है, वो क्रिकेटर है, ये सारे क्या है, क्रिकेटर एथलीट, ये सारे क्या स्टेटस उनकी पहचान है। तो अगर ऐसा आ जाए तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सीधा हम इस्तेमाल करते हैं आपका FS2। और एक कंडीशन है आपकी FS2 के लिए, ये दूसरा क्या है मामला कि काम हो रहा हो, उसके अंदर भी FS2 के अंदर कोई एक्शन हो रहा हो, बट लेकिन जो एक्शन है ना वो किंग के द्वारा नहीं हो रहा हो, जैसे कि एक मकान बन रहा है, खाना पक रहा है। अब यहाँ इसके अंदर आपका किंग क्या है, खाना है, तो खाना ये तो नहीं कि खुद पक जाएगा, कोई इसको पकाएगा ना, यानी काम है जो हमारे किंग के द्वारा नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे किताब पढ़ी जा रही है, अब किताब को कोई तो पढ़ रहा होगा, ऐसा तो नहीं किताब खुद से पढ़ रही है, तो वो यहाँ किंग है हमारा किताब, बट उसको कोई दूसरा पढ़ रहा है, यानी किंग है जो किताब, वो कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। ऐसा होना जब किंग हमारा काम नहीं करता, यानी जब आपका किंग होता है ना, जो आपका जो किंग होता है, अगर आपका किंग है वो डूअर नहीं है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या इस्तेमाल होगा आपका FS2, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सबका निचोड़ है दोस्त, ठीक है ना। ये एक ऐसी चीज है जो सब चीज का निचोड़ है यार, अभी तक जो भी पढ़ा है हमने, आपको ये समझ में आ गया ना। और थोड़ा सा हम इसको और बारीकी में समझते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा, हाँ जैसे कि पहला है हमारा FS1 का ले लेते हैं हम, एक सेंटेंस है ना, ठीक है। मैं जैसे फुटबॉल खेल रहा हूँ, ऐसा हो कोई, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब यहाँ एक चीज है, देखिएगा मैं कर रहा हूँ, ये हमारा किंग है मैं, और वही काम वही खेल रहा है, तो इसलिए ये क्या, खेलने का काम क्या, सीधा एक्शन है दोस्त, कि भाई एक्शन हो रहा है यहाँ पर, आपका कोई काम हो रहा है, खेलने का हो रहा है। तो यहाँ हम क्या लेते थे, सीधा हम FS1 की जो फॉर्मेशन सीट मैंने आपको दी थी, हमने बनाई थी, हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब यहाँ हमने, यहाँ जो किंग के द्वारा एक्शन हो रहा था, ठीक है, यहाँ करते थे हम FS1 अपना इस्तेमाल, बट ऐसा हो गया कि लाइक अच्छा क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, अब मैच खेला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोई तो उसको खेल रहा होगा ना। तो यहाँ मसला क्या है, यहाँ यह कि जो किंग है हमारा क्रिकेट मैच, बट उसको वही खिलाड़ियों के द्वारा खेला जा रहा है, तो क्रिकेट मैच इज बीइंग प्लेड। तो यहाँ क्या, जो अपना किंग है, लाइक क्रिकेट मैच, ठीक है, क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, ऐसा हो। अब यहाँ किंग है आपका कौन है, सीधा क्रिकेट है, नहीं नहीं सॉरी क्रिकेट नहीं भाई, यहाँ आपका क्या है,
जो मैच है ना वो पूरा ही है, ये देखो क्रिकेट मैच है ना, ये आपका किंग हो गया। अब बट क्रिकेट मैच है जो खुद से तो कुछ कर नहीं रहा, उसको खेल रहे हैं, मैच को खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका मैच है ना वो मतलब किंग है ना वो डूअर नहीं, मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं अपना FS1 सॉरी FS2। जब आपका डूअर है, कोई काम नहीं कर रहा हो, इनडायरेक्टली काम हो रहा हो, ठीक है ना, जैसे मुझे पीटा जा रहा है। अब इसके अंदर किंग क्या है, मैं ही हूं, मुझे पीटा जा रहा है, बट अब मुझे तो पीटा जा रहा है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, तो काम किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ आपका इस्तेमाल यानी डूअर है, जो किंग है मैं हूं, यहाँ पर मैं डूअर नहीं हूं, मैं कोई काम नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में यूज करेंगे हम FS2 ये वाला। और एक सीधा यही है कि लाइक मैं अच्छा आदमी हूँ, बुरा आदमी हूँ, एक खिलाड़ी है, या वो हो एक जेलस पर्सन है, वो हैप्पी पर्सन है, ठीक है, वो क्रूअल पर्सन है, ऐसा कुछ सीधा पता चल जाए उसके बारे में, क्वालिटी पता चल जाए, उसका स्टेटस क्या है, तो एक वहां हम FS2 यूज करते हैं। ठीक है, ये है अपना मेन मुद्दा है। ठीक है, चलिएगा फिर अब लेते हैं हम एग्जाम्पल्स। हाँ, कल हमने इसके, यह तो सिंपल है, देखिएगा पास्ट का क्या है कि वो एक ऐसा कुछ पास्ट के बारे में बात थी कि हाँ वो बहुत अच्छी जॉब थी, ठीक है, कहते हैं कि लाइक तुमने छोड़ दी, वो बहुत अच्छी जॉब थी, ऐसा कुछ आ जाए, वह जो बहुत अच्छी थी। भाई आपने छोड़ दी पर वो बहुत अच्छी थी। अब इसके अंदर क्या है कि वो जॉब बहुत अच्छी थी, ठीक है ना, बहुत अच्छी, उसके जॉब के बारे में हमें पता चल रहा है कि वो कैसी थी, ठीक है ना, उसकी स्पेशलिटी पता चल रहा है, उसका स्टेटस है ये। और अब इसके अंदर हमारा किंग देखे तो सीधा जॉब है भाई, सॉरी हाँ जॉब है ना बिल्कुल। पर यहाँ देखिए कोई काम नहीं हो रहा है कि जॉब अच्छी थी, तो अच्छा या बुरा में काम क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये स्टेटस है डायरेक्ट कि वो अच्छा था या बुरा था, कैसा था। तो स्टेटस में हम क्या दें, अब पास्ट की बात हो रही है तो सीधा जाएंगे हम FS2 के अंदर, और FS2 पास्ट में देखेंगे सिंपल कि स्टेटस के लिए आप इस्तेमाल करोगे। देखिए मैं आपको लिख भी देता हूँ, अगर पास्ट का स्टेटस हो तो आप यूज करोगे ये पास्ट सिंपल, अगर आपका प्रेजेंट का स्टेटस हो तो क्या यूज करोगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना दोस्त। जब भी प्रेजेंट का हो तो ये इस्तेमाल करोगे कि लाइक वह बहुत बेहतर खिलाड़ी है, प्रेजेंट का है तो ये वाला यूज करना, पास्ट का हो तो ये यूज करना, ठीक। वह जॉब बहुत अच्छी थी, तो डायरेक्ट यार दैट जॉब वाज वेरी गुड, ठीक है ना। तो यहाँ पास्ट का था और सीधा स्टेटस था, इस्तेमाल किया ये। हाँ ऐसा भी बोलते हैं कि वो लोग हम्म बहुत ईमानदार थे, ईमानदार थे। अब क्या है, ईमानदार थे, सीधा स्टेटस है ना, काम तो है नहीं कोई, स्टेटस है तो अपना सीधा आ जाएंगे हम, पास्ट का है सीधा देखिएगा वो लोग, दे या दोज पीपल भी कह सकते हैं, ठीक है, दे। अब दे क्या है भाई, प्लूरल है तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वर, स्टेटस में से। हाँ देवर वेरी ऑनेस्ट, हम्म ठीक है, देवर वेरी ऑनेस्ट। तो ये क्या है, सीधा स्टेटस है पास्ट का। ओके चलिएगा आगे, यार आज बहुत सारी चीजें कवर करनी है तो थोड़ा सा चलते हैं। हाँ अभी जैसे कोई प्रेजेंट का स्टेटस आ जाए, हाँ यार लाइक कोहली एक बेहतरीन क्रिकेटर है, कोहली एक बेहतरीन क्रिकेटर है, सीधा पता चल रहा है बेहतरीन क्रिकेटर है, उसका स्टेटस है भाई, उसका स्टेटस है, सीधा प्रेजेंट की बात है, लीजिएगा प्रेजेंट का स्टेटस लीजिएगा, सिंपल, ठीक है ना, स्टेटस इसी में आता है। सो कोहली, हम्म कोहली इज अ ग्रेट ग्रेट क्रिकेटर, कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर, ठीक है ना। चलिएगा ये था आपका ये प्रेजेंट का जो स्टेटस था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा फोकस हम पता है कहाँ करेंगे, चलो एक सिंपल हमारे पास फ्यूचर का और बच गया, इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। यार हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसका रिजल्ट तो बहुत बढ़िया होगा यार, ये फ्यूचर में कुछ ना कुछ ये हमें रिजल्ट तो देगी यार, इसका रिजल्ट तो तगड़ा निकलेगा, ठीक है ना। हमारा
हमारा रिजल्ट, या हाँ सीधा फ्यूचर ही ले लेते हैं। हमारा फ्यूचर बहुत, हाँ बहुत बढ़िया होगा। हम इंग्लिश सीख रहे हैं और हम इंग्लिश बोलेंगे धर्राटे से, तो भाई फ्यूचर तो तगड़ा होगा यार, तगड़ी इज्जत मिलेगी और पैसा भी अच्छा मिलेगा। हमारा फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा। हम्म अब देखिएगा, अब होगा, इसमें पता चल रहा है बढ़िया कैसा है, बढ़िया होगा यार। और बात कहाँ के फ्यूचर की है। अब ऐसा तो नहीं इसके अंदर कोई हम काम कर रहे हैं, काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, तो सीधा स्टेटस है और वो फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो हाँ लेते हैं हमारा फ्यूचर, आवर फ्यूचर विल, देखिए विल बी वेरी गुड या ब्राइट, ठीक है ना, आवर फ्यूचर विल बी वेरी गुड। भाई अपना फ्यूचर बहुत तगड़ा होगा, ठीक है ना, एंड इट इज रियलिटी, डोंट वरी, ओके, वी विल बी समथिंग, यू विल बी, यू विल बी समथिंग वट एवर यू वांट टू बिकम, ओके डोंट वरी। तो फ्यूचर का स्टेटस था सीधा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको और कुछ करना ही नहीं, स्टेटस सीधा विल भी लगाइएगा और स्टेटस रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये था अपना फ्यूचर। हाँ एक और ले लीजिएगा, चलो, वह एक तगड़ा वकील होगा यार, आजकल वो बस तैयारी कर रहा है लॉयर की, लॉयर बनने की, और भाई बहस करने में बहुत तगड़ा है यार, और ठीक है ना, बहुत बहस करने में वह एक तगड़ा वकील होगा। तगड़े से मुराद ये है नहीं कि वो लंबा तगड़ा होगा, वह एक तगड़ा वकील होगा। हाँ ठीक है, बात उसकी फ्यूचर की हो रही, तगड़ा वकील से मतलब कि बेहतरीन वकील होगा, ठीक है ना। सो ही विल बी अ गुड लॉयर, ठीक है, ही विल, हाँ ही विल बी अ गुड लॉयर, भाई तगड़ा होगा। तो फ्यूचर की बात थी और स्टेटस था यार सीधा, ठीक है ना, या यू कैन से ही विल बी अ लॉयर, ये लॉयर की स्टेटस ही है, ठीक है। तो ये था अपना सिंपल का मामला, अब खत्म है। अब चलते हैं, हम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ये वाला। अब बात आ रही है अपनी दूसरे वाले, यानी देखिएगा एक्शन, आपका जो एक्शन होता है ना, देखिएगा ये क्या है, हाँ ये क्या है, अपना एक्शन है, ठीक है, ध्यान रखना आप। अब ये करी, स्टेटस का तो पता चल ही जाएगा, अब यहाँ हो रहा है काम। अच्छा एक लेते हैं हम, लेते हैं कि चलो ठीक है, पास्ट का लेते हैं, हेड बीन वाला, ठीक है ना। हाँ यार ये भी तो V3 लेगा, इसका क्यों नहीं। अच्छा, हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, हो गया था, हमारा टाइम पर, टाइम पर प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। सीधा पता है, लाइक देखिए क्या है इसमें काम, भाई प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, क्या है, एक्शन है, सीधा आपका एक्शन है। अब एक्शन है तो हमें ये देखना है कि भाई अपना किंग कौन है, प्रोजेक्ट। बातें किसके बारे में चल रही, सीधा प्रोजेक्ट के बारे में चल रही है, और प्रोजेक्ट आपका क्या है, यहाँ पर किंग है सीधा भाई। अब देखना है कि प्रोजेक्ट अपने आप को पूरा कर रहा है या कोई उसको दूसरा बंदा पूरा कर रहा है। अच्छा किसने खत्म किया, प्रोजेक्ट ने अपने आप को पूरा कर लिया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि प्रोजेक्ट को किसी ने पूरा किया होगा, खत्म किया होगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर किंग है आपका, वो काम नहीं कर रहा, यानी डूअर नहीं है, ठीक है ना। अगर किंग डूअर नहीं है तो क्या आएगा अपना, किंग डूअर नहीं है तो सीधा FS2, ठीक है। तो अब बात कहाँ की हो रही है, काम खत्म हो गया है, और क्या है, पास्ट का है, ठीक है, काम कंप्लीट हो गया है, यानी पास्ट का कंप्लीटेड। सो आवर प्रोजेक्ट had had been finished on time, ठीक है, आवर प्रोजेक्ट हैड बीन फिनिश्ड ऑन टाइम। और देखिएगा हमने यहाँ पर डीटेक नहीं किया, हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत बार इसको मैंने एक्सप्लेन किया, एक बार फिर बता देता हूँ। अभी हमारा इसके अंदर देखिएगा किंग कौन था, हमारा सीधा प्रोजेक्ट था। अगर मैं यहाँ से भी लेता, हाँ आवर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, हमारा टाइम पर, हाँ ठीक है वही बात है, हमारा टाइम पर प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, ओके। हाँ अवर प्रोजेक्ट सीधा ही है, हमारा टाइम पर प्रोजेक्ट, हाँ अवर प्रोजेक्ट ही इसमें पूरा के पूरा किंग है यार, है ना, अवर हमारा प्रोजेक्ट। सो अवर प्रोजेक्ट, पहले हमने ले लिया किंग, यहाँ से किंग से हम गए, काम क्या हो रहा था देखिए, खत्म होने का, तो फिनिश्ड
हैड बीन यहाँ से आया ही है सीधा आपका, क्योंकि पास्ट की वो है, कंप्लीटेड है। फिनिश्ड पर आए, अब जैसे हम यहाँ से वापस लौटे ना, तो क्या बचा था, हाँ यहाँ ये तो ले ही लिया, ये बचा था टाइम पर, टाइम पर टाइम, ये हमने यहाँ रख दिया है, ठीक है ना। वही सेम मेथड है अपना डी टेक्निक का। ओके, चलिएगा फिर और लेते हैं। मुझे, हाँ जॉब से हटा दिया गया था। ओह माय गुडनेस, इट्स सो सैड यार। हाँ ऐसा होता है कि जॉब से हटा दिया गया था, मुझे जॉब से निकाल दिया गया था। निकाल दिया गया था। अब भाई काम पहले देखेंगे हम इसके अंदर कि एक्शन है या स्टेटस है। ये तो पचा भाई, निकाल निकाल दिया गया, इसका मतलब है कि इसका ये क्या है, एक्शन है, ठीक है, एक्शन है। और अब हम देखेंगे इसके अंदर कि किंग कौन है अपना, सीधा है भाई, मुझे निकाला गया है, किंग है। बट किंग क्या करे बेचारा, उसको तो निकाल दिया गया, तो किंग तो कुछ कर भी नहीं सकता, ना ही उसने कुछ किया है, उसको तो जबरदस्ती निकाला गया है ना। इसका मतलब आपका किंग डूअर नहीं है। किंग डूअर नहीं है तो हमारा इस्तेमाल होता है FS2, ठीक है। तो अब देखिएगा, बनाइएगा अपना आई, सीधा है, कंप्लीटेड है, पास्ट का कंप्लीटेड। आई हैड, आई हैड बीन, अच्छा निकाल, जॉब से क्या बोलेंगे उसको निकालने को, देखिएगा इसको बोलते हैं आई हैड बीन फायर्ड, आई हैड बीन फायर्ड द जॉब। तो आई हैड बीन फायर्ड द जॉब, भाई मुझे फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया। एक चीज और थी इसके अंदर, अगर मैं ऐसा बोलूँ ना कि आई वाज फायर्ड, तो भी ये चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बात तो वही थी ना कि वो एक्सट्रीम पास्ट है, एक्सट्रीम पास्ट है, और वो अपना नॉर्मल पास्ट है। इसका इस तरीके से भी इस्तेमाल हो जाता है कि आई वाज फायर्ड, है ना। और देखिएगा इसका ना स्टेटस में आपका इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है, बट उसमें भी आपका इस्तेमाल होता है कि अगर मैं, कि मेरे साथ कुछ हुआ, मानो कि मुझे पीटा गया, देखिएगा एक और लेता हूं मैं, जैसे मुझे पीटा गया, मुझे पीटा गया, अब देखिए पहला तो हमारा पीटा गया था, सबसे अच्छा क्या रहेगा, मैं आपको सिंपल बता दूं, हेड बीन रहेगा, क्योंकि इसमें ना काम खत्म हो गया है, ठीक है ना। आई हैड बीन बीटन, यानी मुझे किसी ने पीटा है। अगर मैं इसको बनाता हूं इसके अंदर, सिंपल के अंदर, आई वाज बीटन, ये भी सही है, मुझे पीटा गया, ठीक है ना। हाँ आप कहोगे कि आपने तो बताया था कि सिर्फ स्टेटस के अंदर ही हम इसको इस्तेमाल कर, नहीं दोस्त ऐसा भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि यह काम है जो आप किसी दूसरे के द्वारा किया गया ना, इसका इस तरीके से इस्तेमाल होता है जब एक्शन हो आपका। आपकी चॉइस है, कोई सा भी बना लेना, ठीक है ना, ये वाला बनाना या ये वाला बनाना, कि ज्यादा पुराना दिखाना है या अभी का दिखाना है, ठीक है। तो चलिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपनी कॉन्टिन्यूटी के अंदर, जो आपका पास्ट की कॉन्टिन्यूटी है। मुझे परेशान किया जा रहा है, ठीक है, हाँ यार मुझे परेशान किया जा रहा है या किया जा रहा था। सो सीधा पता है कि जा रहा था पास्ट की कॉन्टिन्यूटी है। और सबसे पहले देखेंगे कि किंग कौन है, या क्या एक्शन है या स्टेटस, बताइएगा। देखिएगा, मुझे परेशान किया जा रहा था, यानी मुझे परेशान करने का जो काम है ना, वो किया जा रहा था, यानी भाई एक्शन है यहाँ पर, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, अगर आपका एक्शन है और किंग जो आपका ये है इसके अंदर, वो क्या है, डूअर, डूअर नहीं है, जो आपका किंग है वो डूअर नहीं है, तो सीधा FS2 लगता है। सो परेशान, आई वाज बीइंग, ठीक है, आई वाज बीइंग अपसेट, आई वाज बीइंग अपसेट, मुझे परेशान किया जा रहा था। ओके, चलिएगा। हमारे द्वारा गन्ने का जूस, हाँ पिया जा रहा था, ऐसा मान लीजिएगा।
गन्ने का जूस पिया जा रहा था। अब मुझे बताइएगा कि इसमें आप किंग ढूंढ सकते हैं क्या? कुड यू फाइंड किंग ऑफ द सेंटेंस? वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल आंसर यू हैव गिवन। सीधा क्या है? गन्ने का जूस है। बातें गन्ने के जूस के बारे में हो रही हैं। किंग कौन है हमारा? गन्ने का जूस है। और वो खुद से खुद को पी रहा है, ऐसा तो नहीं है। मतलब किंग है, वो डूअर नहीं है। ठीक है, डूअर नहीं है तो आफस टू लगेगा आपका सीधा। अब देखिएगा, किंग को ही रखिएगा पहले। ओके, शुगर, हाँ अभी देखिए दा यहाँ, क्योंकि वो शुगर कैन का स्पेशल जूस है ना। द शुगर कैन, द शुगर कैन जूस पिया जा रहा था। वाज बीइंग ड्रंक, वाज बीइंग ड्रंक। हाँ, और तो कुछ नहीं, हाँ हमारे द्वारा, बाई, बाई अस। ठीक है, हमारे द्वारा गन्ने का जूस पिया जा रहा था। देखिएगा, अगर डी टेक्निक अप्लाई करूं मैं इसमें, सबसे पहले आपका क्या है? गन्ने का जूस है। किंग ये रहा आपका। काम क्या हो रहा था इसके? देखिए, गन्ने का जूस हमने ले लिया है और आपको पता है कि किंग के बाद हम फॉर्मेशन सीट अपनी देखेंगे कि किसका सेंटेंस है। पता चल गया कि पास्ट की कॉन्टिन्यूटी है। इट मीन्स हमें लेना होगा यहाँ पर क्वांटिटी यानी वाज। ठीक है ना, द शुगर कैन जूस वाज बीइंग, बीइंग आएगा ही इसके साथ, क्वांटिटी है तो। अब देखिएगा, काम क्या हो रहा था? सीधा गन्ने का जूस है, पीने का हो रहा था, ड्रंक। अब यहाँ क्या बच गया? हम वापिस आए तो बच क्या गया हमारे पास? हमारे द्वारा, यही बचा ना लास्ट, बाई अस। ठीक है, वही जी टेक्निक हम अप्लाई करें घुमा फिरा कर। ओके, सो लेट्स गो अहेड। एक और लेते हैं पास्ट की कॉन्टिन्यूटी का, और फिर देखिएगा। अच्छा, हाँ पुलिस के द्वारा, या ऐसा बोल दे, चोर, चोर मार्केट में यानी पीटा जा रहा था। अब भाई इसका आपका किंग है, इसके अंदर आपका क्या है? चोर है, किंग है, बट खुद से तो पीट नहीं रहा, कोई उसको पीट रहा, यानी डूअर नहीं है, काम नहीं कर रहा। ठीक है, एफ टूल लगेगा। जा रहा था, पास्ट की कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, वही क्या है? पास्ट की कॉन्टिन्यूटी है आपकी, ये रही। तो चोर क्या है आपका? थीफ क्या है आपका यहाँ पर? थीफ क्या है आपका? सीधा भाई सिंगुलर ही है ना। थीफ वाज बीइंग, बीइंग बीटन, बीटन इन द मार्केट। ठीक है, तो चलिएगा भाई, अब चलते हैं हम अपना, ये तो स्टेटस ही सिंपल। ठीक है ना। हाँ बस इसका इसका भी इस्तेमाल इस तरीके से जैसे हम उसका कर रहे थे ना, लाइक आई वाज बीटन, मुझे पीटा गया, तो इसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। देखिए कैसे। हमको, हाँ हमको मिठाई बांटी जा रही थी। यस, हमको, या ऐसा कीजिए लड्डू, हमको लड्डू बांटे जा रहे हैं। ठीक है, अरे नहीं यार दोस्त, इस तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं होगा। बांटे जा रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब? ये तो कॉन्टिन्यूटी हो रहा है। सो इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूटी हो रहा है यहाँ पर। तो इसका सिर्फ आपको इसी तरह इस्तेमाल करना है, लाइक ही इज अ गुड बॉय, सी इज अ बैड गर्ल, है ना, सी इज इनोसेंट, या सी इज डेंजरस। हाँ, इस तरीके से सिर्फ आपको स्टेटस में इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए ना, कॉन्टिन्यूटी है भाई प्रेजेंट की, कि हमको लड्डू बांटे जा रहे थे, जा रहे हैं, तो प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी है आपकी। कॉन्टिन्यूटी है तो क्या इस्तेमाल होगा आपका? भाई प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूटी इस्तेमाल होगा। क्यों होगा? रीजन क्या है? आपको ना कुछ भी आप पढ़े ना, आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि पीछे का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी क्यों है? क्योंकि एक तो प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी है, FS1 क्यों नहीं है? देखिएगा, किंग क्या है आपका? यहाँ पर लड्डू है, किंग लड्डू है, और लड्डू अपने आप से तो बट नहीं रहा है, कोई तो बांट रहा है उसको, यानी डूअर नहीं है। डूअर नहीं है तो आपका फर्स्ट टू इस्तेमाल होगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ठीक है गया, लड्डू बांटे जा रहे हैं। अच्छा, अब देखिएगा, लड्डू को किस में आप गिनोगे? सिंगुलर में गिनोगे या प्लूरल में?
काउंट करोगे? हाँ, टेल मी। आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड है, बताइएगा किसमें लेंगे? हाँ, यस एग्जैक्टली। अरे यार, बांटे जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्लूरल है। लड्डूज आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, लड्डूज, हाँ, आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड भाई। हाँ, किसको बांटे जा रहे हैं? टू, हमें बांटे जा रहे हैं, टू अस। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर प्रेजेंट का कोई भी आ जाए, एक और लेते हैं, चलिएगा फिर इसको क्लियर करने के लिए। यार वेयर इज डस्टर। ठीक है, चलिएगा एक और लेते हैं और इसको अच्छा, हम ऐसा बहुत बार बोलते हैं ना कि भाई जो कपड़े सूख रहे हैं, यस, कपड़े सूख रहे हैं। बोला हाँ भाई, कपड़े सूख रहे हैं। अब यार देखिए, कपड़े का जो सूख रहे हैं ना, वो अपने आप तो नहीं सूख रहे हैं यार, और कुछ ना कोई ना कुछ चीज उस पर काम कर रही है सुखाने के लिए। ठीक है ना? तो कपड़े सूख रहे हैं का क्या मतलब है? क्लोथ्स, क्लोथ्स आर बीइंग ड्राइड। ऐसे ही बोलते हैं हम कपड़े, जैसे कि यार कपड़े धुल रहे हैं, हमारे कपड़े धुल रहे हैं। आवर क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। कपड़े धुल रहे हैं। ठीक है? हाँ, जो काम है ना, देखिए कपड़े अपने आप को खुद तो धो नहीं सकते, कुछ तो कोई तो उन्हें धो ही रहा होगा ना, वॉशिंग मशीन धो रही होगी या कुछ भी हो बहरहाल। तो यहाँ पर जो आपका दोनों में क्या है, किंग है जो, वो डूअर नहीं है। बस आपको फंडा ये है कि आपको ये ध्यान रखना कि डूअर है या नहीं है। ठीक है ना? जस्ट डूअर है तो आपका FS1 इस्तेमाल होगा सीधा, और अगर डूअर नहीं है तो आपका इस्तेमाल होगा यहाँ पर कपड़े मतलब वो FS2 इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिएगा फिर। हाँ, ये हमने बीच में से छोड़ दिया, प्रेजेंट कंप्लीटेड। ओके। हाँ, हमारे यहाँ बोलते कि हाँ भैंस बांध दी है। इफ सपोज योर मदर इज आस्किंग यू लाइक, भैंस जो बांधी है या नहीं बांधी है, तो आप क्या करोगे? क्या बोल, हाँ कि भैंस बांध दी है, ऐसा हो ना, देखिएगा फिर। ठीक है यार? हाँ, बकरी, यार माई फेवरेट इज गोट, तो भाई बकरी का लीजिएगा। ठीक है ना? भैंस या बकरी बांध दी है, बकरी, मैंने, बकरी इज माई फेवरेट वर्ड, आई टेल यू रीजन। ओके, मैंने बकरी बांध दी है। बचपन में हमने ये काम किया है दोस्त, इसलिए मैंने बकरी बांध दी है। तो क्या है? हाँ, बांध दी है का मतलब तो भाई देखो, काम तो खत्म हो गया है, और अब बकरी अपने आप से तो बंध नहीं गई है, मैंने बांधा है ना उसको। तो किंग क्या है यहाँ पर? आपकी बकरी है, और वो डूअर नहीं है, ये ध्यान रखना, डूअर नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे काम खत्म हो गया है, प्रेजेंट का क्या है? कंप्लीटेड है। ओके, हाँ, सीधा लीजिएगा किंग को। ओके, गोट, गोट हैज बीन, अरे यार मैंने बकरी बांध दी है, तो ये FS2 का कहाँ से हो जाएगा? मैंने बकरी बांध दी, तो मैंने बांधी है ना, तो सीधा तो किंग भी इसके अंदर में ही। अरे यार, ये FS1 का है। ओह माय गुडनेस, रियली यार, यू आर नॉट अवेयर, यू आर नॉट हियर, यू आर नॉट इन दिस क्लास, व्हाई डिड यू नॉट टेल मी कि सर जो वो मैंने बांधी है, तो कैसे हो जाएगा वो FS2 का सेंटेंस? सी मैंने बांधी है ना, कि किंग तो मैं हूं यहाँ पर, डायरेक्ट काम हो रहा है, यानी जो आपका किंग है ना यहाँ पर, वो सीधा डूअर है। किंग डूअर का क्या मतलब है दोस्त? किंग डूअर का मतलब है कि FS1। ठीक है? अगर किंग आपका डूअर है, सीधा काम कर रहा है, तो आपका क्या इस्तेमाल होता है? FS1, यानी मैंने बकरी बांध दी है। आई हैव टाइड, आई हैव टाइड द गोट। अब वो कोई, ठीक है, आई हैव टाइड द गोट, सीधा पता चल, क्योंकि ये मैंने करा है ना, वो काम डायरेक्टली किया है। जो यहाँ पर किंग है आपका डूअर है, इसलिए ये उसका आ गया। ठीक है ना? प्रेजेंट, ये उसका आ गया, प्रेजेंट कंप्लीटेड है, और FS1 का था। ठीक है? अच्छा, हाँ, ऐसा भी बोलते हैं हम, जैसे हाँ, डिनर, डिनर सर्व कर दिया गया है, या टेबल पर लगा दिया गया है,
जाकर खा लीजिएगा। हमारी जो मॉम है ना अक्सर बोलते हैं खा के डिनर लगा दिया है, आप जाइएगा खा लीजिएगा। तो अब डिनर सर्व कर दिया है, यानी किंग क्या है आपका डिनर, और अपने आप से सर्व हो गया है, आपकी अम्मी ने सर्व किया है, यस उसको सर्व किया है, ठीक है ना। किंग डूअर नहीं है आपका यहाँ पर, किंग डूअर नहीं है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि FS2 लगेगा, किंग डूअर नहीं है तो। और अब ये देखेंगे कि मसला क्या है, काम हो गया है, खत्म है, यानी प्रेजेंट का कंप्लीटेड ही है। ओके सो द डिनर, खाली डिनर फूड, डिनर हैज बीन सर्व्ड, सर्व, ठीक है। अब वो आपकी मम्मी ने किया है, लाइक बाय यू, बाय योर मॉम, बाय योर सिस्टर, अब जिसके द्वारा भी किया यू कैन पुट हियर डिनर हैज बीन सर्व्ड, ठीक है। और ये ध्यान रखना हम क्यों ले रहे हैं V3, आपको पता कोई भी एक्शन हो ना FS2 के अंदर हर जगह जो आपका FS3 आता है, कोई भी एक्शन हो तो, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर यार मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ और पढ़ाना था। इट वाज नॉट टुडेज टॉपिक, बट मुझे ऐसा लगा था कि यार मन नहीं भरा था इस चीज से, इसको और एक्सप्लेन किया जाए अच्छे से, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सेशन है जो और इस पर लिया जाए, ठीक है। तो चलिएगा और लेते हैं, प्रेजेंट का कंप्लीटेड इसी को लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा बर्थडे हाँ सेलिब्रेट हो गया है, ऐसा ले सकते हैं, ठीक है ना। जो पार्टी है वो खत्म हो गई है, ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी को ले लेते हैं, पार्टी हाँ खत्म हो गई है। भाई आप लेट हो गए, अब तो पार्टी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं यहाँ पर खाने को कुछ नहीं है, खत्म हो गई मामला, बर्तन भी धुल गए अब, ठीक है। आप लेट हो गए तो पार्टी खत्म हो गई है, ठीक है ना, ऐसा आ जाए। सीधा क्या है पार्टी, भाई पार्टी को खत्म किया गया, ऐसा तो नहीं वो खुद से बंद हो गई है। सो पार्टी हैज बीन फिनिश्ड, ओके। सीधा उसका था, प्रेजेंट कंप्लीटेड था, और जो आपका ये क्या था किंग था, वो डूअर नहीं था, काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इस्तेमाल किया FS2, ठीक है। तो चलिएगा, मुझे लगता है कि अब मामला सेट है इसका। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, अगर आपको नेगेटिव वगैरह बनाना हो तो क्या करोगे आप, चलो जो नेगेटिव है नेगेटिव बनाने हैं, और एक से वाला कॉन्सेप्ट है वो बचा है अभी तो, है ना, और एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, उनको हम कल एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है ना, इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, सो यू कैन पुट योर comment into comment box, definitely it will be solved, okay। So guys, it was today's session, I hope you have enjoyed, yeah yaar, I also enjoyed a lot today, because now I am also satisfied that we have explained FS2 in detail, okay। सो आज अच्छे से हो गया सारा कुछ, और मुझे लगता है कि FS1 में FS2 के अंदर कुछ है ही नहीं, अब एक दो कंसेप्ट है, से वाला है वही है, वो हम कल पढ़ेंगे, और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा विदा। लेट मी गो, let me wrap up our session, we will meet tomorrow, so bye bye, have a nice day ahead and be the boss।